Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. In the last lecture we have seen the formula of the convolution theorem as well as its proof. And in this sections, in this lecture, we are especially solve the problems by using the theorem of convolution theorem. Okay? So you can see the question on the board. The statement is using convolution theorem. If this type of statement is given on your question paper, then it is mandatory to solve by using convolution theorem. If nothing is written and you have to find also the inverse Laplace of these functions, then you can use partial fraction method as well as use convolution theorem. But if the statement is given using convolution theorem, then it is mandatory to use the convolution theorem. So this is the key point. So here we have to find the inverse Laplace of this by using convolution theorem. The topic is that. Okay. Let us see. Solution. Given function is 1 by s plus a into s plus b. Here are two functions in product. Let one of them is taken as fs and fs is equal to s plus a, and other is gs and gs is equal to s plus b. So this implies the inverse Laplace of fs is equal to, what is the inverse Laplace of fs? E to the power minus a, and inverse Laplace of gs is equal to e to the power minus bt. This is equal to ft and this is equal to g. Now we have कहां से, तो फ्रॉम convolution theorem we have from convolution theorem inverse Laplace of fs into gs is equal to ft star gt. This is called convolution of f and g. So here convolution of ft star gt means integration 0 to t f u minus t, f t minus u into gu into d. This is the formula of the convolution theorem. F t minus into gu. So first of all, replace t by t minus u here. So this equal to 0 to t e to the power. In place of t, you can write t minus u into gu. It becomes e to the power minus bu, and this is d. ओके, आई थिंक कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है. ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन है. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा. यहां तक दिखा आपको. हेलो फ्रेंड्स, अब ये जो आपको नीचे दिख रहा था, इसमें देखिए माइनस ए टी प्लस यू दिख रहा था. माइनस ए टी क्योंकि ये यू का फंक्शन है ना, तो यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, मतलब यू यहाँ वेरिएबल है, तो बाकी जो टी है वो जस्ट लाइक कांस्टेंट, उसको आप बाहर कर दो. ई टू द पावर माइनस ए टी बाहर हो गया, और यहाँ हो गया ई टू द पावर माइनस ए माइनस बी. तो यहाँ देखो ए माइनस बी टू यू डी यू है. अब इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए माइनस बी इंटू यू डिवाइडेड बाई यू का कोएफिशिएंट a माइनस.
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। चलिए तो e टू दी पावर माइनस ए टी, यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर t, तो हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी इंटू टी, ठीक है, और माइनस जब हम 0 डालेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस। अब ये जो टर्म है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए टी खत्म, तो हो जाएगा बी टी माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इनवर्स लैप्लास ऑफ व्हाट, दिस इज द इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाई s माइनस s प्लस a into s plus b, and this is found by using the theorem of convolution, means convolution। so आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप कन्वोल्यूशन थ्योरी जानते हैं तो आप जो भी फंक्शंस प्रोडक्ट में रहेंगे उसको आप इजी वे में डील कर सकते हैं। तो एक आपका एक नया तरीका है, एक नया मेथड है, उसको यूज कीजिए आप। क्लियर? आप तो पार्शियल फ्रैक्शन से बना ही सकते थे, लेकिन अगर आपके पास ये भी एक मेथड आ गया, तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड हो जाता है तो मीन्स हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम किसी भी ऑप्शंस को चूज करके वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आदमी को हमेशा ऑप्शंस रखना चाहिए, सिर्फ लाइफ के गोल को लेकर के नहीं। और क्या कहते हैं, मेथड, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ भी एक ऑप्शन होना चाहिए। नंबर ऑफ मेथड्स होता है तो आप किसी भी मेथड से मूव कीजिए, क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर? चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। Hello friends, you can see another question, 1 upon s into s to the s square plus 4, and you have to find the inverse Laplace transform by using the convolution theorem. So it is clear, the question is clear, so we have to find its solutions. Solution, given function, क्या है आपका फंक्शन, 1 upon s into s square plus 4। Here let fs is equal to 1 by s and gs is equal to 1 by s square plus 4. So this implies the inverse Laplace of fs means inverse Laplace of 1 by s, and inverse Laplace of 1 by s is 1, and this is function of ft. This is equal to 1 and this is equal to f. This implies inverse Laplace of gs is equal to inverse Laplace of 1 by s square plus 2 square, and this is sin 2t upon 2. Clear? Sin t upon t, and this is equal to g. Now using convolution theorem we have, क्या है हमारे पास, तो L इनवर्स ऑफ fs into gs कैपिटल इज इक्वल टू ft स्टार gt, and this is equal to integration over 0 to t ft, सॉरी ये हो जाएगा fu g t minus u d. I have already told you that you can use commutative law. It is not usually not necessary to write always f t minus u into g u into d. You can also write fu into g t minus u d. अब सवाल है कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि एफ टी जो है वहाँ पे t का फंक्शन नहीं है, वहाँ पे 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने क्या किया कि इसमें चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 to t इन प्लेस ऑफ एफ टी यू कैन राइट 1, क्योंकि एफ टी एफ यू एक ही बात है, वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल के बदले से कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ जो है आपका हो जाएगा साइन 2 t के प्लेस में t
t माइनस यू और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो साइन का हमको पता है कितना होता है cos, तो माइनस cos 2t माइनस यू, क्योंकि यहाँ किसका फंक्शन था, u का फंक्शन था और u का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो -2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा +4 हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, तो लिमिट 0 से लेकर के 2 तक डालेंगे। ठीक है, तो जहाँ t है, जहाँ जहाँ u है वहाँ पे t डालना है, तो ये हो जाएगा माइनस, जैसे ही t डालेंगे तो cos 0 तो हो जाएगा 1/4 और माइनस जैसे ही u के जगह पे 0 डालेंगे तो cos 2t, तो दिस इज cos 2t डिवाइडेड बाय 4। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, तो cos 2t minus 1 divided by 4। I hope this is the final answer of the given function, and answer is what, the inverse Laplace transform of fs into gs, and this is solved by using the convolution. So look at this. You can see this is the final answer. Hello friends, you can see another question on the board. This is 1 upon root s into s minus 1 and you have to find the inverse Laplace transform, ठीक है, by using the convolution theorem. So let us see. Solution. Let fs is equal to 1 by root s and gs is equal to 1 by s minus 1. This implies inverse Laplace of fs is equal to inverse Laplace of 1 by s per power half and inverse Laplace of, sorry, this is capital G, gs is equal to inverse Laplace of 1 by s minus 1 and this is equal to e to the power t and this is g. But here we have to arrange L inverse of 1 by s पे पावर n plus 1 होता है ना, तो n हो जाएगा -1 n plus 1, सॉरी -half plus 1, n की जगह पे कितना हो गया, अच्छा रूट s का तो हम लोग को ठीक है, क्या फॉर्मूला था, दिस इज इक्वल टू t पे पावर n, तो t पे पावर -half यहां हम लिखते हैं, ये दिस इज इक्वल टू t पे पावर -half इनटू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 मतलब हाफ, और हाफ का गामा फंक्शन कितना होता है, रूट पाई, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई t इनटू पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ft, ये है क्लियर। तो इधर fs का भी इनवर्स लैप्लास निकल गया और gs का भी इनवर्स लैप्लास निकल गया। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करते हैं। क्या कहता है कन्वोल्यूशन थ्योरम कि इनवर्स लैप्लास ऑफ fs into gs means fs into gs means inverse Laplace of 1 by square root of s into s minus 1 is equal to ft star g. And what is the value of ft star gt? So integration over 0 to t, here ft fu, you can write fu into g t minus u and t. This is the formula of convolution of f. Okay, so this is equal to integration over 0 to t, in place of fu you can write this, so 1 by u into pi का square root into e to the power
t, in place of t you can write t minus u, so this is t minus u and this is d. Okay, so you have a definite integration like this. Clear? चलिए, जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, e टू दी पावर माइनस टी बाहर हो गया, और ये जो है रूट यू भी आपका क्या हो गया, रूट पाई बाहर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे बाद में करना है हमको, और इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग 0 से लेकर के t। एक काम करते हैं ना, t का वैल्यू तो 0 से लेकर के t है, तो t u की जगह पे टिका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 1 पाई रूट यू इंटू ई पे पावर माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t, और ये यहाँ तक आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट u इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो du बराबर हो जाएगा 2v dv हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा e टू दी पावर t, ये हो जाएगा रूट पाई। जब 0 होगा तो 0, और जब t होगा u का वैल्यू t है, तो ये हो जाएगा रूट t। रूट u का वैल्यू t है ना, तो u की जगह में पुट कर रहे हैं, u की जगह में v स्क्वायर रख रहे हैं। तो जब u 0 है तो v का वैल्यू 0 है, और जब u t है तो v का वैल्यू हो जाएगा रूट t और e टू दी पावर माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो v और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2v dv। ये v और v ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली जो आया वो e टू दी पावर t अपॉन v कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के रूट टी ई टू दी पावर माइनस वी स्क्वायर डी वी, और ये हो जाएगा आपका कितना 1 बाई रूट पाई। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना आपका, इसको बोलते हैं ईरर फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ईरर फंक्शन ऑफ रूट टी। ये माइनस, तो दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर t ई आर एफ रूट टी, इसको बोलते हैं ईरर फंक्शन ऑफ रूट टी। ठीक है, यहां लिखेंगे वेयर ईरर फंक्शन ऑफ रूट टी, ईरर फंक्शन ऑफ is called error function is equal to ERF रूट टी, और ERF रूट टी का जो वैल्यू है वो है आपका 1 बाई रूट पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के रूट टी e टू दी पावर माइनस v स्क्वायर। दिस इज ERF फंक्शन। ये एज ए रिजल्ट अब इसको, ठीक है। तो यही है आपका क्या, इनवर्स लैप्लास निकालने का फॉर्मूला, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन है दूसरे तरह का, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये ईरर फंक्शन कहलाता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता करना है, किसका, तो 1/s² + a² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इसको बनाना है यूजिंग कैलकुलेशन थ्योरम। सो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, एक सिंगल हो जाएगा s² + a², और यहाँ भी हो जाएगा 1/s² + a²। अब दोनों का निकाल लीजिए, तो दिस इम्प्लाई
L inverse of fs and this is equal to sin 80 upon a और ये ft मान। उसी तरह से L inverse of gs is equal to sin 80 upon a और this is equal to gt मान। Now using convolution property of convolution theorem, डायरेक्ट convolution theorem यूज करें। क्या है तो इनवर्स लैप्लास ऑफ fs into gs is equal to ft star gt and ft star gt means integration 0 to t f t minus u into gu into d 0 to t t minus u मतलब sin a t minus u upon a into sin u a du a du ये तो होगा। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, क्योंकि ये u का फंक्शन और u दोनों ले रहे हैं ना, तो एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ तक देखिए तक एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1/2a का स्क्वायर और इनसाइड में लिख सकते हैं 0 to t 2 sin a t minus a u into sin a u। यहाँ पे 2 sin a into sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर 0 to t, यहाँ हो जाएगा cos a minus b। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a t minus 2au cos a minus b minus of cos a plus b, इसको जोड़ेंगे तो a t हो जाएगा। ठीक है, इतना आया और ये हो गया t। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1/2a, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos का हो जाएगा sin a t minus 2au, u का कोएफिशिएंट -2a माइनस यहाँ तो कांस्टेंट टर्म हो गया तो cos a t इंटू यू और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के t तक। अब जहाँ जहाँ u है वहाँ t डाल तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर। जैसे ही t डालेंगे तो t में हो जाएगा 2at, तो यहाँ at तो -at है, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा तुम्हारा sin at/2a और माइनस t इंटू, अच्छा ये तो कांस्टेंट था ना, cos at हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 डालेंगे तो जब 0 पुट करेंगे तो u के जगह में 0 और ये पूरा का पूरा 0, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस sin at/2a। ठीक है, अल्टीमेटली हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो हो जाएगा sin at minus t cos at डिवाइडेड बाई a। एक काम करो यहाँ पे at लिख लो और डिवाइडेड बाई a जो था ये a का क्यूब हो जाएगा। आई होप कि यही आंसर होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। थोड़ा सा ठीक है, हाँ ये ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।